Hello friends, myself Ashish Kumar Singh and I am teaching in Sri Chaitanya since 3 years. Today we will discuss quadratic equation and the purpose of the lecture is today first we will discuss agenda of the session. What is the agenda of this session basically? Just we want to teach some simple things, understanding quadratic equations and some quick revisions of quadratic equations. सपोज जैसे डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं उनके ऊपर नेचर ऑफ रूट्स कैसे हम डिसाइड कर रहे होते हैं एंड हाउ वी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So we will discuss also the some other methods, different methods of to find the solution of a quadratic equation. And today's class will help you generally in for the score and your board examination also. And the next point is yeah, exactly, it will be the 1 hour lecture and your full revision of quadratic equation for the class 10th, and to enhance conceptual understanding and critical thinking. सो इस लेक्चर के अंदर हम जनरली ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे हम अपने क्रिटिकल थिंकिंग को किसी भी टॉपिक के अंदर इनहांस कर सकते हैं, कैसे हम कुछ शॉर्टकट्स के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू अपने आप को और इनहांस करके आगे और बेटर कर सकते हैं. सो वी विल स्टार्ट. टुडे वी डिस्कस सम टॉपिक्स. ओके, the first topic will be the quadratic equation and its roots, and the second topic will be methods to find solution of a quadratic equations, and the third topic is discriminant and nature of roots. So discriminant क्या होंगे and उससे उसके बिहाफ पे हम nature of roots कैसे decide करेंगे, ये भी हम discuss कर रहे होंगे यहाँ पे. Okay, and the last point, one or two common roots of two quadratic equations and the some practice questions related to all the topics. Okay, starting with the generally we are starting with the quadratic equations, and the quadratic equation what is? Okay, so what is quadratic equation? If fx is a quadratic polynomial, then fx equal to 0 is a quadratic equation. Basically, general form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0, and here the a not equal to 0, and a b c all the three coefficients belongs to the real number. Basically, अगर हम बात करें यहाँ पे तो quadratic equations के अंदर डिग्री तो 2 होनी चाहिए, साथ में ए बी सी जो हमारे वेरिएबल्स है यहाँ पर ये बिलोंग करनी चाहिए रियल नंबर के अंदर, एंड जो हमारा यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट है ए, ये जीरो नहीं हो सकता. इफ ए बिकम्स जीरो, why a cannot be zero? So अगर if a becomes zero, so here just a minute. Okay, so if a equals to 0, so what will happen? It will be 0 into x square plus bx plus c equal to 0, and I think it will become bx plus c equal to 0. It is not a quadratic equation, it is a linear equation. So a cannot be 0. Now further we will discuss some other parts of the quadratic equations. Just look here. Okay, yeah. Okay, roots or solution of a quadratic equation in one variable. Ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation in one variable, and we discuss how many number of solutions are possible for this equation. Okay, for any equation the number of roots or solutions are same as degree of the equation. So अगर किसी भी इक्वेशन के हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, क्यूबिक हो, उसमें जो भी डिग्री होती है उस इक्वेशंस की, उस पर डिपेंड करता है उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. इफ द डिग्री इज 2 in quadratic equation, so number of solution is 2. If the degree is 3, so the number of solution is 3. Okay, so we will continue with some examples related to the same question, same topic. Okay, yeah. Okay, we have given some examples, and we will discuss the number of solutions and solutions for the given examples. Okay, so what is the solution of the first equation? You are very well known for this equation, and the solution is 2x minus 6 equals to 0, and x equal to 3 is the solution. So x equal to 3 is the solution, is only value which satisfy the given equation. So x equal to 3 will satisfy the given equation. So x equal to 3 is a solution. Of given equation. Okay, done. And if we are discussing the second equation, which is x square minus 16 equals to 0, the second equation,
x square minus 16 equal to 0, it will satisfy for the two values of x equals to 4 and x equals to minus 4. Just look and verify it. If you put x equals to 4, 4 का square हो जाएगा 16, 16 minus 16 will be 0, and if you put minus 4 at the place of x, it will also 0. So it has two solutions. Okay, so this is a linear equation in one variable, and this is a quadratic equation in one variable, and it has only one solution x equal to 3, and the quadratic equation in two variable has two solutions x equals to 4 and minus 4 for the equation x square minus 16 equal to 0. Now we are coming on the next question. It is a cubic equation generally, the third part. If we are discussing the third part, it is nothing but x minus 5 into x square minus 4x plus 3 equal to 0. If we factorize x square minus 4x plus 3 equal to 0, it will become x minus 3 and x minus 1. Okay, is it correct? Yeah, is it correct? Okay, so how many solutions for the equation, for this equation x minus 5, x square minus 4x plus 3 equal to 0 are possible? So the possible equations are x equals to 1, 3 and 5. Okay, so we have a different type of equations. If the degree of the equation is 1 in the first example, so the solution is 1, x equals to 3. If the degree is 2, so the solution यहाँ पर x की वैल्यू 4 and minus 4, two solutions आपको देखने को मिल रहे हैं. And if the degree in the third example is 3, so the number of solutions possible जो हो पा रहे हैं वो x की वैल्यू जो आ रही है वो 3 आ रही. And in the next example, if you are properly observing, so x square minus 1 and x square minus 49 will provide 4 linear factors, and it has a degree 4. So it will provide, basically it will provide 4 roots or 4 solution. If we are discussing the next fifth example, it is also an equation, linear equation in two variables. How many number of solutions are possible for this equation? Number of solution. We are very familiar with this equation in class 9. We earlier studied about the same topic कि 2x plus y equals to 11 के number of solution कितने आते हैं? Infinite आते हैं. Infinite number of solution आते हैं. बट हमने डिस्कस कर लिया कि अगर वन डिग्री का इक्वेशन है तो उसके सोल्यूशन तो इनफाइनाइट होने चाहिए. लेकिन ये जो भी हमने डिस्कस किया है कि वन अगर डिग्री है तो नंबर ऑफ जो वहां पर हमें सोल्यूशन या जीरोस देखने को मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, और अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 देखने को मिल रहा है, डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ आपको सोल्यूशन वहां पर 3 देखने को मिल रहा है, डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ सोल्यूशन 4 देखने को मिल रहा है. ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है जो भी हमारा इक्वेशन है इन वन वेरिएबल. ये तो जो आपका टॉपिक होता है, जो आपका ये थ्योरी होता है, ये सिर्फ वन वेरिएबल के लिए पॉसिबल होता है. तो वन वेरिएबल के लिए अगर हम बात करें तो अगर डिग्री n है तो उसके कितने पॉसिबल होंगे सोल्यूशन? n सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे, n रूट्स पॉसिबल होंगे. सो द क्वाड्रेटिक के लिए कितने पॉसिबल होंगे? 2 पॉसिबल होंगे. लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसके लिए, 2 वेरिएबल के लिए अगर लीनियर की बात करें तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे. सेम ऐसे अगर हम बात करें 2 वेरिएबल का, अगर क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो उसके सोल्यूशन कितने होंगे? वहां पर भी हमें बहुत सारे डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे. सो अगर हम बात करते हैं कि एक इक्वेशन है वन वेरिएबल में और उसकी डिग्री है 1, सो इसके कितने सोल्यूशन होंगे? 1. और अगर एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिग्री 2 का तो उसके कितने सोल्यूशन है? 2. और क्यूबिक है तो 3. डिग्री 4 का कोई इक्वेशन है हमारे पास वन वेरिएबल का तो उसके होंगे 4. लेकिन 2 वेरिएबल के लिए हम ये क्लियरली नहीं कह सकते. सो कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, we have a different method to find the solution of a quadratic equation. We just discussed in classes. By factorization method, we find the solution of a quadratic equation, and the second one is by using completing square, and the third one is directly by using quadratic formula. What is the quadratic formula? If ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation where a not equal to 0, a, b, c belongs to R. So अगर हम बात करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा जिससे हम इजीली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सके.
So it will be the x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. आप लोग इसको ट्राई करिएगा, इसका प्रूफ कैसे निकालते हैं. इसका प्रूफ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही निकलता है, जो हम a को कोफिशिएंट को कॉमन ले लेते हैं और वहां से कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जा रहे होते हैं. सो हमारा रिवीजन लेक्चर है तो हम वो वाला टॉपिक अभी डिस्कस नहीं करेंगे. तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से हम इजिली जो है किसी भी क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स या 2 सॉल्यूशंस इजिली निकाल सकते हैं. ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस on the next sheet. Okay, which of the following is not a quadratic equation? 2x minus 1 का square plus 4x square minus 2x plus 1, and the second one is 2x minus x square equal to x square plus 5. Third one is root 2x plus root 3 square plus x square equal to 3x square minus 5x, and the last D, x square plus 2x whole square equal to x to the power 4 plus 3 plus 4x square. Which one is basically which one is not a quadratic equation? How you will decide which one is not a quadratic and which are quadratics? So first we solve all the equations and are basically we say कि we simplify all these and convert it into a standard or general form ax square plus bx plus c equal to 0. Basically we convert it in this form, and the second in this form, and the third in this form, and the fourth also in this form. We convert all these equations in the standard or general form. Then we will able to decide the given equation is a quadratic or not. Okay, so first हम डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पे कि भाई कैसे हम इन्हें डिसाइड करके बता पाएंगे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है. जस्ट लुक. ओके बच्चों, देख लेते हैं कैसे डिसाइड करेंगे हम. फर्स्ट वाले को हम जरा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके जनरल फॉर्म की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. सो आई थिंक यहां पर भी 4x स्क्वायर मिल जाएगा हमें. 4x स्क्वायर, नो सॉरी, एक सेकेंड. ओके, इट विल प्रोवाइड बेसिकली 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. सो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है बेसिकली. अगर हम 2x स्क्वायर को इधर जाके डिफरेंशिएट अगर हम वहां पे सब्सट्रैक्ट भी कर दे 2x स्क्वायर को राइट साइड ले जाकर के, तो भी ये क्वाड्रेटिक है. अगर हम सेकेंड क्वेश्चन में आए, अगर हम इनको एक साइड ले जाने की कोशिश करें, सो इट विल बी बेसिकली माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5. ये भी क्वाड्रेटिक था, ये भी क्वाड्रेटिक है. एंड द नेक्स्ट वन इज 2x स्क्वायर प्लस 3 ओके प्लस 2 रूट 6 x ओके इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x. डेफिनेटली इट विल बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज जब भी हम इनकी शिफ्टिंग ट्रांसपोजिशन एक साइड में करेंगे और इन्हें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक रहेगा. जैसे देख लेते हैं एक बारी और. 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 6x plus 5x plus 3, and in the next step it will be minus x square plus 2 root 6 x plus 5x plus 3 equal to 0. So definitely it will be a quadratic equation. So the last option third, ये भी quadratic equation था हमारा, ये भी quadratic equation था हमारा, ये भी quadratic equation था हमारा. ये वाला quadratic equation नहीं होगा. आप एक बार चेक करके भी देख लो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चा. x to the power 4 plus 4x square plus ओके x ओके a square plus b square plus 2ab लगा लेते हैं यहाँ पे. 4x क्यूब आ जाएगा इक्वल्स टू x to the power 4 plus 3 plus 4x square. और अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन चेक कर रहे हो तो x की पावर 4 कैंसल आउट तो जरूर हो जा रही है, 4x स्क्वायर भी कैंसल आउट हो जा रहा है. Remaining part is 4x cube equal to 3. It is not a quadratic equation. It is a cubic equation. Okay. So we are coming on the next question related to the same topic. If y equal to 1 is a root of the equations ay plus 3 equal to 0 and y square plus y plus b equal to 0, then ab की वैल्यू क्या होगी? Just think about the question. Just 1 minute. Think about the question. तब तक मैं इसे इरेज कर लेता हूं, आप लोग ट्राई करिए. ओके,
तो सोच लिया हम लोगों ने या नहीं सोचा अभी तक? ओके, जस्ट लुक हियर, solution number 2 for this question. Okay, we are discussing solution for this question 2. Y equal to 1 is the root of the equation this, यानी कि पहले वाले क्वाड्रेटिक का भी रूट है y equal to 1 and y equal to 1 is also the root of second equation y square plus y plus b equal to 0. So if y equal to 1 is a solution, एक सेकेंड, is a solution of ay square plus ay plus 3 equal to 0, तो सेटिस्फाई करेगा, फिर y equal to 1 को सेटिस्फाई करेगा and it will be y a plus 3 equal to 0 and 2a equal to 3 minus 3 and a equals to minus 3 by 2 and what will be b basically, since y equal to 1, y equal to 1 is also the solution of second equation y square plus y equal plus b, so y equal to 1 will also satisfy y square plus y plus b. satisfy करा के चेक कर लेते हैं नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी y की, जस्ट लुक हियर. सो y इक्वल्स टू 1 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा भाई प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0, सो 2 प्लस b इक्वल टू 0 and b will be equivalent to minus 2. Now, what will be the a into b? Now, what will be the a into b? Now, what will be a into b? A into b will become, a into b क्या हो जाएगा बच्चा? A into b will become minus 3 by 2 into minus 2 and 2 cancel, minus 3 and minus 1 will become positive 3. AB will be plus 3. Where is the option? A option is correct. Okay? क्लियर हो गया आई थिंक मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो यहां से आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछे जाते हैं. नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट टॉपिक्स. ओके, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर x. ये हमने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं जो बहुत ही बेसिक है, जिनको आपको इनके सोल्यूशन के बारे में सोचना है. हाउ यू विल फाइंड द टू सॉल्यूशंस फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. हाउ? Think about the first equation. It is 2x square minus 18 equals to 0. कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? 2 कॉमन ले लेते हैं अपन. It will be, अच्छा हमारे पास और भी मेथड है. अगर हम देखें यहाँ पे तो हम फैक्टर मेथड से भी यूज करके बना सकते थे. जैसे मैं यहाँ पे पहले ये फैक्टराइजेशन से करा के दिखाता हूँ. बाई फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते थे आप इसे? बाई फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते थे बच्चा? कैसे कर सकते हैं इसे बाय फैक्टराइजेशन? 2 कॉमन लिया, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0. 2 करा तो ये x माइनस 3 और x प्लस 3 बन जाएगा. यस, सो यहां से तो इजी है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 इक्वल टू 0, सो आइदर द फर्स्ट x माइनस 3 विल बी 0 या फिर x प्लस 3 विल बिकम 0. सो x इक्वल टू माइनस 3 आ सकता है, एक आंसर आ सकता है x इक्वल टू 3. दीज टू आर द सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन. इसको और कैसे कर सकते हैं हम? एक और मेथड से भी कैसे सोच सकते हैं हम? जस्ट थिंक अबाउट द सेकंड मेथड. ओके, थिंक अबाउट द सेकंड मेथड. कैसे सोचेंगे बेटा? 2x square can be written as 18 and when we are writing x square it will become 18 by 2, so it will be 9 basically. and अगर x square की वैल्यू 9 है तो x can be plus minus root of 9 and x will be basically plus minus 3. Okay, any doubt? So you can find from here or here, both are correct. अगर आप बोर्ड एग्जाम की बात करो या किसी भी जगह पे एग्जाम की बात करो, दोनों करेक्ट है. किसी भी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो. आप फॉर्मूला मेथड भी इवन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बट वहां पे ध्यान देना कि b की वैल्यू हमें 0 लेके चल रही है, क्योंकि b यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. लेकिन हर बार हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाएंगे. दीज आर द सिंपल क्वेश्चन. सो हम यहाँ पर या तो फिर फैक्टराइजेशन से चले जाएंगे या जनरल स्क्वायर मेथड से चले जाएंगे. स्क्वायर कैसे हम निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वहां से डिस्कस कर लेंगे. ओके, ठीक है. तो आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पॉइंट नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. एक बार यहीं पे देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 21x. ये सब बिल्कुल जो सिंपल क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस पे बेस्ड है. पहले वाले में देखिए तो b 0 है और अगर सेकंड वाले में देखिए तो c की वैल्यू 0 है. जो हम क्वाड्रेटिक लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वहां पर आप देखिए तो पहले वाले एग्जांपल में हमारा क्या 0 है?
सी की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू 0 है और सेकंड एग्जांपल में सी की वैल्यू 0 है, इफ आइदर बी इज 0 और सी इज 0, तो सोल्यूशन फाइंड करना बहुत आसान होता है, वहां पे मैं फॉर्मूला मेथड लगाना ही नहीं है, या तो बस आप जस्ट ये क्वाड्रेटिक से बात बन जाए, सॉरी ये आपके फैक्टराइजेशन से बात बन जाएगी सिंपल, या तो फिर आपसे कॉमन लेने से भी बात बन जाएगी। जस्ट लुक हियर, वी आर टेकिंग 3x एज अ कॉमन एंड हियर आर द ऑप्शंस आर x plus 7 I think equal to 0. Is it correct? Yeah, it's correct. It's correct. Okay. So either the x will be 0 or the x plus 7 will be 0. So x will be minus 7. तो ना यहाँ पे ना हमारे पास एक पंगा आता है, हम एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि सर ये जब टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो आइदर द फर्स्ट विल बी 0 और सेकंड विल बी 0 करके आप ये दो वैल्यू जो निकालते हो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 0, -7। ये x की दो वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन के सोल्यूशन है, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक था तो इसके दो ही सोल्यूशन होंगे और वो दोनों हमने निकाल लिए। ये भी एक क्वाड्रेटिक था, इसके दो सोल्यूशन होंगे, हमने निकाल लिए। तो हमारे पास क्या है, एक सिंपल चीज थी, अगर हमारे पास ax² + bx में से b नहीं है या c नहीं है तो ये दोनों मेथड लगा के आप इजीली बना सकते हो। यहां से ही बनाना है क्वेश्चन और कहीं नहीं जाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं यूज करना है। अब इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे अगर आपसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पॉसिबल है लगा लीजिए, वहां से बन जाएंगे। अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं बनते हैं तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे होंगे। तो जस्ट थिंक अबाउट द क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसको अगर आपने नोट कर लिया हो, एक बार मैं हट जाता हूँ, आप पॉज करके वैसे भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब हम आ जाते हैं एक बार को क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डिस्कस कर लेते हैं, एक मिनट। सो okay, third question simply based on the factorization method। अगर हम यहां पर देखें तो x² + 3x - 10 = 0। अगर हम इस पोर्शन को वापस से देखें कि x² + 3x - 10 = 0 को कैसे हम कोरिलेट कर रहे होंगे, कैसे इसे फैक्टराइजेशन से निकाल रहे होंगे, कैसे इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल रहे होंगे, दोनों मेथड से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो थिंक अबाउट द प्रोसेस। अगर हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पे a और c का तो व्हाट विल बी ac, इट विल बी 1 × -10 एंड आंसर इज -10। फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे ही अप्लाई करते हैं अपन। द सेकंड टर्म इज b, बेसिकली b की वैल्यू कितनी है, +3 है। वी विल स्प्लिट b इन टू पार्ट्स सच दैट कि b1 एंड b2, जो ये टू पार्ट्स हम सोचते हैं b1 एंड b2, इनके एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है वो b आने चाहिए और इन दोनों पार्ट का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए भाई, ac आना चाहिए। ओके, सो डिसाइड कि +3 को किस टू पार्ट में ब्रेक, विच टू पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो सो दैट कि इनका प्रोडक्ट -10 देखने को मिल रहा हो और ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे +3 मिल रहा हो। तो जरा डिवाइड करिए इनको भी टू पार्ट्स में, क्या क्या आएंगे वो पार्ट्स। सो b1 b2 में डिवाइड कर लेते हैं, एक मिनट, चलिए आ जाते हैं, दो पार्ट हम देख लेते हैं क्या क्या होगा यहाँ पे, एक मिनट। सो इट विल बी आई थिंक +5 - 2, इजिली, बहुत इजी है। +5 - 2, 5 में से 2 जाता है, अपना 3 हो जाता है, 5 × -10 करेंगे तो -10 आ जाएगा। सो वी आर पिकिंग द वैल्यू हियर, इट विल बी x² + 5x - 2x - 10 = 0। सो इट विल बी, अगर हम यहाँ पे देखिए पेयरिंग करते हैं इनमें और इनमें, तो x कॉमन लिया तो x + 5 एंड यहाँ पर -2 कॉमन ले लेते हैं तो x + 5 हो जाएगा एंड = 0। सो बेसिकली x + 5 अगेन कॉमन मिल रहा है हमारा, तो अंदर क्या बच जाएगा बच्चा, x - 2 = 0। अब ये बार बार हम ये करते हैं कि x + 5 को = 0 किया और x = -5 लिख दिया, क्यों करते हैं जरा सोचिए आप। अगर हमारे पास दो नंबर हो, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा हो, तो आप क्या सोचोगे कि भाई ये दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आएगा, आइदर द फर्स्ट विल बी 0, सर आइदर फर्स्ट विल बी 0 और द सेकेंड विल बी 0। वेरी गुड, तो हम यही सोचेंगे कि सर या तो फर्स्ट 0 होगा या तो सेकंड 0 होगा या दोनों 0 होंगे, ये तीसरा केस भी पॉसिबल है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे कि ठीक है सर हम समझ गए अब क्या करना है, या तो ये पहला वाला फैक्टर x + 5 0 होगा या तो सेकंड फैक्टर x - 2 0 होने वाला है। इट्स ओके, आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे फटाफट, वी आर डिस्कसिंग हियर कि x + 5 0 कर देते हैं और एक बार x - 2 को 0 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 एंड x = क्या मिल जाएगा बच्चा, -5। दिस टू आर द सोल्यूशन। So x = 2 and x = -5 are the solution for this quadratic equations. Okay? अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या हम इस क्वेश्चन को अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, यस, मेथड 2।
हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। कैसे? x इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं तो उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से नहीं कर सकते, उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट द क्वेश्चन। ओके, इफ यू आर लुकिंग हियर कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, माइनस बी की वैल्यू कितनी है जरा यहाँ पे आप क्या एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए एक बार, एक मिनट रुकिएगा जरा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर हम यहाँ पे आए तो a की वैल्यू कितनी थी जरा बताइएगा एक बारी। a की वैल्यू है यहाँ पर 1, b की वैल्यू कितनी है बच्चा 3 एंड c इज बेसिकली माइनस 10। सो ओके, सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? So solution will be minus 3 plus minus under root of 3 square minus 4 into minus 10 into 1 basically, तो 1 कोई वैल्यू देगा नहीं हमें प्रोडक्ट के बाद। So 2 into a 1 also. So x will become basically minus 3 plus minus and it will become 40 plus 9, 49 I think. 49 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 7 अपॉन 2। So it will provide, x will provide two solutions। अगर हम x की बात करें तो x will provide two solutions। First one minus 3 plus 7 upon 2, कॉमा सेकेंड सोल्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा होगा हमें ये, एक मिनट। ओके, सेकेंड प्रोवाइड कर रहा होगा माइनस 3 माइनस 7 बाई 2। सो द x की जो टू वैल्यूज आने वाली हैं 4 बाई 2 आने वाली है, कॉमा और यहां पे आने वाली है माइनस 10 बाई 2। सो x विल बी इक्विवेलेंट टू 2 कॉमा माइनस 5। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 2 कॉमा माइनस 5, और जो पहले भी हमने निकाल रखा है वो सेम ही निकाल रखा है x इक्वल टू 2 और माइनस 5। तो चाहे आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से कर लो, इन बोथ द केसेस आपको जो सॉल्यूशंस मिलेंगे, जो रूट्स मिलेंगे वो सेम मिलने वाले हैं। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आप फोर्थ क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा, फैक्टराइजेशन से नहीं बनेगा। फैक्टराइजेशन से जनरली तभी बन पाते हैं जब रेशनल रूट्स होते हैं, तो आपको इजी होता है सोचना। जब रूट्स आपके इरेशनल होंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा फैक्टराइजेशन, और जब रूट्स इमेजिनरी होंगे तो बनने का सवाल ही नहीं बनता, फिर तो बनना ही नहीं है आपसे। ठीक है, फिर आपको सीधे फॉर्मूला मेथड पे जाना है और वहीं से इसे ट्राई करना पड़ेगा। तो जरा हम एक बार फोर्थ क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले आप एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिएगा आराम से पॉज करके। ओके, चलिए। ओके बच्चों, तो हम आ जाते हैं फटाफट फोर्थ क्वेश्चन पे। हम यहाँ पे ना फैक्टराइजेशन ट्राई करेंगे तो ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है आपसे। जरा आप देख लीजिए एक बारी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप फैक्टराइजेशन करके ला ही नहीं पाओगे। आप 6 को 2 पार्ट में ब्रेक करो और उनका प्रोडक्ट 1 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है जनरली। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं फिर हम यहाँ पे सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चा, यहाँ पे a की वैल्यू पहले डिसाइड कर लो 1, b की वैल्यू कितनी 6, c की वैल्यू कितनी 1। ये वैल्यू कैसे आई, हमने इसको कंपेयर किया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वहां से। सो कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू तो आ गई। अब जरा हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है वो भी आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वहां से निकाल लेते हैं। x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो यहां से फटाफट निकाल लेते हैं बच्चा, वैल्यू क्या आएगी -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, इट मींस 6 स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a. So roots are basically here x minus 6 plus minus under root of 36 minus 4 is 32 basically upon 2। क्या हो जाएगा बच्चा आंसर? आगे हम देख लेते हैं एक बारी, फटाफट आगे देख लेते हैं एक बारी। तो x की वैल्यू आ चुकी है -6 प्लस माइनस अंडर रूट 32 अपॉन 2। 32 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, शर्ट से बाहर निकालते हैं, देखते हैं क्या बच जाता है। तो इट विल बी x equals to -6 plus minus 32 will become 4 under root 2 upon 2। हम अगर यहाँ पे ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो इट विल बिकम -3 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड x will become -3 प्लस माइनस 2 रूट 2। So the first value या first solution is -3 plus 2 root 2. Okay, and the second solution is
-3 - 2√2। ओके, सो x इक्वल्स टू x की 2 हमारे पास सॉल्यूशंस आ जाते हैं, एक -3 + 2√2 और एक -3 - 2√2। ये दोनों ही सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेंगे और दोनों ही हमारे आप देख रहे होंगे इररेशनल जो है वैल्यूज है x की। तो इररेशनल जब भी वैल्यूज आते हैं वो आपके कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे -3 + 2√2 एंड अगेन इज -3 - 2√2। तो यहां से भी क्वेश्चन कभी कभी अच्छे वाले बन जाते हैं। ओके, क्या हम इसे किसी और मेथड से भी ट्राई कर सकते थे, सोच सकते थे? यस, बेसिकली सोच सकते थे। कैसे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। मैं दिखाता हूं कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को। जरा देखिएगा इधर, मेथड 2। हमने मेथड 2 हर बार ही डिस्कस किया, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके लिए। मेथड 2 क्या हो जाएगा बच्चा? यहां पे मेथड 2 क्या हो जाएगा? ओके, डिस्कस कर लेते हैं। बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं हम इसे? बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं। बाई, अभी हमने कोई भी क्वेश्चन बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर किया नहीं है, तो हम एक क्वेश्चन बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर करके दिखा देते हैं आपको कि कैसे करते हैं इसे। सपोज इट इज x² + 6x + 1 = 0 ना। ओके, सो क्या हो जाएगा सोल्यूशन यहाँ पे बचा? जरा देखिए कंप्लीट स्क्वायर कैसे ट्राई करते हैं। पहले जो x होता है यही हमारा a² का रोल प्ले कर रहा होता है। मतलब ये हमने बना लिया है यहाँ पे a² प्लस जो ये 6x है ये 2ab का काम करेगा। 2x × 3, मतलब ये हमने इसको ऐसे लिख दिया 2 × 1 मिनट, यहां पे मुझे करेक्ट करने दो, 1 मिनट, 2ab। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 2 × x × 3 में, प्लस अब हमें ना इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए 3 का स्क्वायर रिक्वायर्ड है। मतलब हमें अगर यहां पे मिल जाए b² तो इट विल बिकम a + b होल स्क्वायर बेसिकली। क्लियर है? तो a + b का अगर होल स्क्वायर बन जाएगा तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे, जरा मैं दिखाता हूं आपको। अगर हम यहां पे देखें तो a² + 2ab, हमने 6x को ब्रेक कर दिया 2 × x × 3 में। हमें यहां पे रिक्वायर्ड है एक 3 का स्क्वायर, जो कि यहां पे हमारे पास 1 ही है, तो 1 हमें दे तो नहीं पाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 9 तो नहीं दे पाएगा। तो हम कैसे ट्राई कर रहे होंगे? फिर हमने 9 ले लिया, चलो भाई ठीक है, हमने 9 ऐड कर लिया यहाँ पे। तो जितना आपने ऐड किया उतना आप सब्सट्रैक्ट कर लो यार। 9 आपने सब्सट्रैक्ट कर लिया और पहले से +1 दे रखा है, = 0 हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहां से लेके यहां तक का पार्ट क्या बन गया आपका? x + 3 का होल स्क्वायर माइनस -9 + 1 कितना हो जाएगा भाई? ये -8 = 0। अब यहां से ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। मैं प्रीवियस वाला हटा देता हूं पहले थोड़ा सा, ठीक है। देख लेते हैं क्या आ जाएगा बच्चा यहाँ पे। सो बेसिकली अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ पे थे कि सर x + 3 का जो स्क्वायर है -8, इट विल बिकम = 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + 3 स्क्वायर? इट विल बी इक्विवेलेंट टू 8। इफ वी आर टेकिंग the square root of other side, it will be ± √8। प्लस माइनस √8 मीन्स √8 की वैल्यू जो होती है वो हमारी रहती है 2√2। इट विल बी 2√2। x + 3 is equals to ± 2√2। So what is the value of x? It will be -3 ± 2√2। आई थिंक जो प्रीवियस वाले मेथड से हमने सोल्यूशन निकाला था और जो अब की बार भी हमने निकाला है, बोथ आर सेम। सो यू कैन यूज आइदर मेथड, चाहे आप पहला वाला यूज कर लो चाहे आप ये वाला यूज कर लो, दोनों से आपके सोल्यूशन सेम आने वाले हैं, अलग नहीं आने वाले हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो बहुत ही इजी एग्जांपल्स थे, लेकिन आपको मैंने उनको अंदर डिफरेंट अप्रोच दिया कि कैसे आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो इन क्वाड्रेटिक्स को। ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर 4x² - 4ax+। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़े से लॉजिकल थिंकिंग में और थिंकिंग में आपके काम आएंगे। जब फर्स्ट वन हम डिस्कस करते पहले एक बारी, यहाँ पर फर्स्ट वन कैसे डिस्कस करेंगे मैं हिंट दे रहा हूं, आप ट्राई करना है एक बार को। बढ़िया सवाल है। इट इज 4x² - 4ax + a² - b²। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन से भी बन जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी बन जाएगा। मैं फैक्टराइजेशन से कर देता हूं, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ट्राई करना। बेसिकली आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही ट्राई करते हो, मुझे पता है। तो आप इसको जरा एक बार फैक्टराइजेशन से देख लो कैसे बना सकते हैं अपन। हाउ? सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वन? सो अगर हम बात करें तो 4 × a² - b²।
ओके अगर हम इन्हें फैक्टराइज करें तो जनरली ये कुछ और नहीं है 4 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है भाई, हमने क्या फाइंड आउट किया है, ए इंटू सी की वैल्यू। ठीक है, ये आएगा ए इंटू सी का वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि हम जो अपने मिडिल टर्म है बी, उसको ब्रेक करते हैं टू पार्ट में। एक सेकेंड, यहां पे स्मॉल ए ले लेते हैं। हम इसको ब्रेक करते हैं टू पार्ट में। कौन से टू पार्ट में ब्रेक करेंगे भाई, जल्दी से बताना जरा। -4a के टू पार्ट करने हैं। ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे आपका -4 आ जाना चाहिए, 4a आ जाना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए, अगेन ध्यान रखिएगा 4 इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है, क्या हम यहां पर कुछ ऐसा सोच सकते थे, -2 ब्रैकेट में a प्लस बी एंड -2 ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए बड़े आराम से बन जाएगा, ट्राई करिए, बहुत आराम से बन जाएगा। अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को प्रोडक्ट करें तो इट विल बिकम 4 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और अगर हम इन्हें ऐड कर दें एज इट इज, इट विल बिकम -4 ब्रैकेट में ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, सो वी आर ओके, यहां पर देख लेते हैं क्या बन जाएगा, ये 4x स्क्वेयर माइनस 4ax को हम ब्रेक कर रहे हैं टू पार्ट में, एंड दीज टू पार्ट्स आर -2 ब्रैकेट a प्लस बी एक्स एंड -2 ब्रैकेट a माइनस बी एक्स। आई थिंक मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ओके, तो ये स्प्लिटिंग अगर थोड़ी सी आपको समझ में आती है तो क्वेश्चन इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। ओके, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, यहां पर अगर हम देखें क्या कॉमन मिलता है, और इन टू पार्ट्स पे देखते हैं क्या कॉमन मिलता है। पेयर्स हमने बना लिए हैं, इनमें कॉमन लेना है, बस हमें कॉमन लेके देख लेते हैं एक बार क्या आता है। यहां पर 2 कॉमन मिलता है हमें, एंड इट विल बिकम 2x मिल रहा है, तो 2x माइनस ब्रैकेट a प्लस बी, एंड यहां पर हमें मिलने वाला है -2 ब्रैकेट a माइनस बी, एंड इन द ब्रैकेट वी ऑब्टेन x माइनस a प्लस बी। आई थिंक यहां पे 2 नहीं मिलेगा हमें कॉमन, सॉरी 2 नहीं मिलेगा, तो इस 2 को हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट। ओके, तो यहां पे हमें सिर्फ a माइनस बी मिलेगा कॉमन में, -a माइनस बी, और यहां पर 2 रह जाएगा फिर इक्वल टू 0। तो वहां पे 2 कॉमन हमें नहीं मिल रहा था जनरली, क्योंकि यहां पर 2 था, यहां पर अवेलेबल नहीं था 2, तो हमने कॉमन नहीं लिया, हमने माइनस ले लिया फर्स्ट में। अगर कभी भी 2 टर्म्स में फर्स्ट में माइनस हो तो हमें कॉमन ले लेना चाहिए माइनस जनरली, सो हमारा इजी हो जाएगा पार्ट। अब यहां पर देखिए ये वाला पोर्शन दोनों में ही कॉमन है, हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब इनर बॉक्स में क्या बचने वाला है भाई, यहां पे 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। सो यहां पर भी अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0 है, सो आइदर द फर्स्ट फैक्टर विल बी 0 और द सेकंड फैक्टर विल बी 0। सो हम इन्हें इक्वेट करते हैं बारी बारी 0 के। सो x विल बी व्हाट, a प्लस बी बाई 2, एंड जब हम सेकंड वाले पार्ट को 0 करेंगे भाई तो क्या बन जाएगा, so these two are the solutions, x की वैल्यू a plus b by 2 और x की वैल्यू a minus b by 2 are the solution for the same equation। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। चलिए फिर आगे चलते हैं फटाफट सेकेंड इक्वेशन को। सेकेंड इक्वेशन अगर आप एलसीएम लेके भी करते हो तो बन जाएगी बात, थोड़ा सा लंबा होगा क्वेश्चन लेकिन बात बन जाएगी। हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन रिड्यूसिबल इन क्वाड्रेटिक के हिसाब से करेंगे, दिखाता हूं कैसे सोचते हैं इस क्वेश्चन को। हम यहां पे लेट कर लेंगे, इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे इजी क्वाड्रेटिक के अंदर। कैसे रिड्यूस करेंगे जरा देखिएगा, let x upon x plus 1 is equivalent to y. So what will be the value of 1 upon y? I think 1 upon y will equivalent to the reciprocal of x upon x plus 1 means x plus 1 by x. So x plus 1 by x is called 1 by y. Reciprocal of the x upon x plus 1 will become 1 upon y. Okay, just put the value of x upon x plus 1 and x plus 1 upon x in the above equation। देखते हैं यहां से क्या मिल जाता है, हमें क्या मिल जाएगा बच्चा, यहां पे y plus 1 upon y equal to 34 upon 15। ओके, ये थोड़ा सा इजी क्वाड्रेटिक है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, मैं दिखाता हूं कैसे। सो क्या बन जाएगा बच्चा, यहां पे y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इक्वल्स टू 14 अपॉन 15, सॉरी 34 है ऊपर, 1 मिनट, ठीक है।
तो 34/15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, y here and 15 is here लेफ्ट साइड, तो 15y स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 34y। सो इट्स अ इजी टास्क बेसिकली। अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत इजी टास्क है ये हमारे लिए कि हम इसे क्वेश्चन को कैसे आराम से कर सकते हैं। एक मिनट देखिए जरा, आई थिंक यहां से बच्चों से बन जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे बन जाएगा भाई, इक्वेशन हमारा कहां पहुंच गया, एक मिनट, ठीक है, इक्वेशन हमारा कहां पहुंच जाएगा बच्चा, क्या चूज कर लिया, ओके एरो चूज कर लिया हमने, ओके ठीक है। देखते हैं यहां पे हम कहां पहुंच जाएंगे, 15y स्क्वायर माइनस 34y प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है, यही है। तो देखते हैं हम क्या 34 को फैक्टराइज कर पाएंगे कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए 15 इंटू 15, यानी कि AC बनना चाहिए 15 इंटू 15 यानी कि 2 to 5। देख लेते हैं भाई 2 to 5 बन सकता है कि नहीं बन सकता है। हमारा जो -34 है क्या वो ब्रेक हो पाएगा, मुझे दिख रहा है -25 और -9, चेक करो आप, इनके सम्स आ जाएंगे -34, और जब हम -25 और -25 और -9 का जब हम प्रोडक्ट कर रहे होंगे इन दोनों का, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोवाइड करेगा आपको 2 to 5। जरा चेक करते हैं यहाँ पे आ जाता है कि नहीं आ जाता है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, y -9y प्लस 15 इक्वल टू 0, जस्ट ओके। क्लियर करते हैं यहां से फटाफट, ओके आते हैं बच्चा यहाँ पे जस्ट। अगर हम यहां पर देखें और यहां पर देखें, दोनों में कॉमन ले लेते हैं फटाफट, तो यहां से 5y मिल जाएगा हमें, एंड y 3y माइनस 5 इज द वन फैक्टर, एंड यहां से अगर हम देखें तो -3 कॉमन मिल जाएगा अपने को, 3y माइनस 5। So we got two factors. First one is 3y minus 5 and the second one is 5y minus 3 equal to 0. So we have a two values for the y. Y equals to 5 by 3 and 3 by 5. 1 1 आप बारी बारी को 0 कर लोगे तो आपको ये two values मिल जाएंगे. So we got two values for y. Is it clear? So 5 by 3 and 3 by 5 are the two solution for y. So in given equation x was the variable, so we will find the x, not y. Y is the solution for this equation, y plus 1 by y equal to 34 by 15. So given equation में अगर हमारे पास वेरिएबल x है तो हम वैल्यू जो निकालेंगे वेरिएबल की वो x की निकालेंगे। चलते हैं हम आते हैं बारी बारी, अपने जो रिमेनिंग पार्ट है उनकी वैल्यूज निकाले के एक बार ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट केस में जब y की वैल्यू 5 by 3 है तो यहां से ट्राई कर लेते हैं कि x क्या आ जाएगा। y क्या था हमारा बेटा x अपॉन x प्लस 1, यहां से फटाफट फाइंड आउट कर लो, y बॉर्न 3 है, क्या वैल्यू है जरा बताइए, 3x 5x प्लस 5, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू -5/2। यहां पे ज्यादा नहीं बता रहा मैं क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और आप बहुत अच्छे से जानते हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हैंडल करना। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, ये तो केस 1 हो गया जब आपने वैल्यू ली, केस 2 जब आपने y की वैल्यू लेनी है क्या, when y इक्वल टू क्या 3/5 एंड x अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 3/5, और अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 5x इक्वल टू आएगा 3x प्लस 3, और बच्चा यहाँ से आएगा 2x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -3/2। So we have a +3/2. So we have two solutions for the given quadratic equation. First one is x equals to -5/2 and the second one is x equals to +3/2. Okay, it's easy basically. तो हमने देखा यहाँ पर टू इक्वेशंस, एक बहुत अच्छा था जिसमें हम वेरिएबल डाल के वैल्यू को सॉल्व किया हम लोगों ने। एक जो सेकंड इक्वेशन है ये इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जो सम इक्वेशंस आर रिड्यूसिबल इन क्वाड्रेटिक। तो हमने बहुत सारे इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक में ले आते हैं और वहां पे उसे सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो ये वो वाला इक्वेशन था, इक्वेशंस आर रिड्यूसिबल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो वहां वाले क्वेश्चन से ये। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सब एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने ये वाला पढ़ा हुआ है, याद होगा आपको, अगर आपको याद हो तो आपने ये वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। कौन सा वाला भाई, ये वाला पढ़ा हुआ है, अभी हमने डिस्कस भी किया। इस वाले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो ये अंदर, जो शर्ट के अंदर है b² - 4ac, थोड़ा दिख रहा होगा आई थिंक, मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं,
एक मिनट। तो जो भी हमें यहां पे दिख रहा है एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू क्या है? यहां पे रूट डिसाइड करने वाला कौन है? कौन रूट डिसाइड कर रहा है? रूट का डिसाइडर कौन है? बेसिकली रूट का डिसाइडर है जो ये रूट के अंदर वाला नंबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम कहते हैं क्या यहां पर? डिस्क्रिमिनेंट। ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जरा आप इस शर्ट को देखो, आप उठा करके एक बार शर्ट को उठा के देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का पोजीशन देखना जरा, कहां पे है ये? एक शर्ट के अंदर है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होगा तो शर्ट पॉजिटिव होगा, तो वहां पे रेशनल और इरेशनल रूट्स के संभावनाएं हैं। मतलब बेसिकली मैं कह सकता हूं कि रियल रूट्स की जो है वो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाता है तो शर्ट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव देखने को मिले आपको, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? सॉल्यूशंस क्या देखने को मिलेंगे? इमेजिनरी सॉल्यूशंस देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमें रियल सॉल्यूशन कब देखने को मिलेगा, इट विल डिपेंड ऑन बी स्क्वायर माइनस 4ac कि सॉल्यूशन रियल है, रूट्स रियल है या फिर इमेजिनरी है। कैसे? क्योंकि ये शर्ट के अंदर है, शर्ट के अंदर वैल्यू इंपैक्ट करेगी। अगर शर्ट के अंदर पॉजिटिव है, जीरो है, तो प्रोवाइड करेगा रियल सॉल्यूशन। अगर शर्ट के अंदर नेगेटिव है तो ये प्रोवाइड करेगा क्या? इमेजिनरी सॉल्यूशन, यानी कि नो रियल सॉल्यूशन। जस्ट लुक द थ्योरी पार्ट। इफ d इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, जस्ट थिंक, मतलब बहुत सिंपल सी बात मैंने बोली, d ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, रूट आर रियल, रूट्स आर रियल बेसिकली। एंड इफ d ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू 0, मतलब मैंने फर्स्ट पार्ट को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। रूट्स आर रियल का कॉन्सेप्ट अगर सिर्फ बोल दे रूट्स आर रियल, तो हमें सोचना है दो चीजों के बारे में कि d की वैल्यू ग्रेटर देन r इक्वल टू दोनों पॉसिबल हो सकती है। और अगर सिर्फ बोल दे कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो d की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 हम कंसीडर करेंगे। और जब बोले रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोथ, तो वहां पर d की वैल्यू इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे। और जो थर्ड पार्ट होता है कि इफ d लेस देन 0, सो यहां पर हम बोलेंगे नो रियल रूट्स और बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स। क्लियर है इतनी बात? ओके, वेरी गुड। सो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, कुछ क्वेश्चन इनसे रिलेटेड जो है जो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहां पर d जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, वो डिसाइड करता है नेचर ऑफ रूट्स को। कैसे डिसाइड करता है? हम कुछ क्वेश्चन से और कुछ चीजों से करके देखते हैं एक बार फटाफट। आ जाते हैं। ओके, सो वी आर ऑन द क्वेश्चन। we have a two question, fifth one and fifth में दो पार्ट है, A and B, and एक और पार्ट भी है हमारे पास नीचे, सेकेंड पार्ट। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं एक बारी कि नेचर ऑफ रूट्स आप कैसे निकालोगे। यहां पर अगर हम बात करें ए वाले ऑप्शन के अंदर, ए वाले के अंदर सोल्यूशन की बात करें, तो A की वैल्यू कितनी है हीरो? 1। B कितना है? 2√2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? C is -6। ओके, A equals to 1, B equal to 2√2, C equal to -6। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा बच्चा? यहां पे b की वैल्यू जो थी उसको स्क्वायर कर लो आप, 2√2 माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी -6। जो भी वैल्यू रखिएगा विद साइन रखिएगा। a की वैल्यू पॉजिटिव 1 है, b की वैल्यू पॉजिटिव 2√2 है एंड c की वैल्यू -6 यहां पर है, तो बिल्कुल साइन के साथ रखिएगा। तो क्या हो जाएगी d की वैल्यू, जरा बताते हैं, यहां पे देखते हैं एक बार क्या हो जाएगी। 2√2 का स्क्वायर बेसिकली 8 हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, -4 एंड -6 का प्रोडक्ट यहां पे +24 हो जाएगा। जो रिजल्ट आया d का वो 32 आया। एक कैसा नंबर है? ये एक पॉजिटिव नंबर है। d इज नथिंग बट ए पॉजिटिव नंबर। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जरा हम एक बार अपने उस वैल्यू की तरफ चल के देखते हैं कि हमारे पास जो x की वैल्यू आती है वो क्या होती है। x की वैल्यू यही होती है क्या? बिल्कुल यही होती है। अगर हम यहां पे बात करें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर यहां पे पॉजिटिव 32 देता है तो माइनस, यहां पे एक बार हम डाल के चेक करते हैं कैसा रूट आएगा आपका। सो -2√2, ठीक है, टू ए मतलब 1। ओके, तो यहां पर आप देख लो ये रूट्स जो है वो इमेजिनरी नहीं है, क्योंकि शर्ट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे देखने को मिले, जो हमारे रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे? जनरली देखने में तो इरेशनल टाइप के लग रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा। जो भी रूट आएंगे वो रियल आएंगे, रेशनल एंड इरेशनल बोथ आर द रियल्स। तो हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं बेसिकली और फर्दर कि वो रूट्स रेशनल है या इरेशनल है। बट अभी के लिए क्या हम कहेंगे, बस एक सिंपल सी बात कि रूट्स कैसे है? रियल है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट के बिहाफ पे आंसर करना हो हमें,
तो हमने डी देखा, डी अगर हमारा पॉजिटिव वैल्यू आता है, अगर डी पॉजिटिव वैल्यू आता है तो हमारा आंसर क्या होगा कि रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। ओके, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, डी, चूंकि यहां पे क्या बेटा हमारा, एक मिनट वेट, हम यहां पे सिंपल सी एक लाइन बोल देंगे कि डी इज पॉजिटिव, सो रूट्स आर रियल। ओके, अब यहां पर चूंकि पॉजिटिव है तो रूट्स रियल भी होंगे एंड इक्वल भी होंगे। अगर डी 0 आ जाता तो ठीक है। तो अगर हम आते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा हमारे, ए पार्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी या 0 आएगा तो रूट्स रियल होंगे, पॉजिटिव आया है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट देखने को आपको मिल जाते हैं। सो वी आर ऑन द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है बच्चा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां पर अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकाले तो क्या बन जाएगा, जरा बताना। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट आएगा हमारा ए बी सी की वैल्यूज आप यहां पे इजीली फाइंड आउट कर लो, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी की वैल्यू जरा बताइएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 4 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू 5। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू, 16 माइनस 5, सॉरी 16 माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 4। ओके, सो d इज नेगेटिव, सिंस d इज नेगेटिव, d क्या है हमारा, नेगेटिव वैल्यू है, सिंस d इज नेगेटिव सो द d इज नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई। सो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो रूट्स होंगे इक्वेशन के वो कैसे होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी या नॉट रियल, बेसिकली नॉट रियल। सो रूट्स आर नॉट रियल बट इमेजिनरी। ओके, जस्ट हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर रहे होंगे यहाँ पे। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ इक्वेशन k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। सो रूट्स रियल कब होंगे, और रियल एंड इक्वल के केस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उस केस में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। ओके, तो डिस्कस कर लेते हैं एक बारी ये क्वेश्चन लास्ट वाला। गिवन पार्ट क्या है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दे रखा है हमने k प्लस 4x स्क्वायर k प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है। तो आ जाते हैं एक बारी डिस्कस कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे कंपेयर करने पे, k प्लस 4, b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर k प्लस 1 एंड c विल बी 1 बेसिकली। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल सो इट विल प्रोवाइड डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0। सो d इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं हम, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, सो d इक्वल टू 0 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, k प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू k प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे हम फटाफट। k प्लस 1 के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 16 इक्वल टू 0। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे k के लिए, तो ये नेक्स्ट क्या दे देगा हमारा, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहां पर भी k की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि k एक क्वाड्रेटिक है तो k की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। चेक कर लेते हैं वो 2 वैल्यूज क्या आएंगी, थोड़ी सी वर्किंग इधर कर लेते हैं हम, देखते रहिएगा। अगर हम यहां पे बात करें तो k एक क्वाड्रेटिक है ना, तो k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 5k। अगर हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते हैं यहाँ पे फैक्टराइज करके, तो कुछ ऐसा ही हो जाएगा, 3k माइनस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा बिल्कुल। ये माइनस 5k प्लस 3k इज इक्वल टू -2 एंड -5 और -3 का प्रोडक्ट करेंगे तो -15 इजीली आ जाएगा। ओके,
अगर हम यहाँ पे k कॉमन ले लें तो रिजल्ट विल बी k माइनस 5 एंड प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो k माइनस 5 इक्वल टू 0. Okay, what will be the solution? K minus 5, K plus 3 equal to 0. Now the K have two values, minus 3 and 5. K की टू वैल्यूज आ गई यहाँ पे -3 and 5. एक बाउंड्री वैल्यू भी यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी आपको क्योंकि ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ था. तो K plus 4 की वैल्यू जो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट होता था वो A होता था और उस A की वैल्यू आप लोगों को याद होगा क्या नहीं होनी चाहिए. A की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0. सो K plus 4 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी K की वैल्यू नहीं होनी चाहिए -4. तो ये वाला बाउंड्री पॉइंट भी याद रखिएगा. तो K की वैल्यू चूंकि -4 यहाँ पे नहीं आया है, -3 आया है, सो इट इज एक्सेप्टेबल. अगर K की वैल्यू -4 आती तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होती. सो यहाँ पर बोथ वैल्यू K की एक्सेप्टेबल है, जिसके लिए कि ये गिवन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोवाइड कर रहा होगा जिसके कि रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. एक बार आप लोग ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर से स्लाइड को नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ओके हमारे पास ना कंडीशन ऑफ एक हमने पॉइंट और डिस्कस किया है. बहुत ही यूनिक टॉपिक होता है ये हमारा. इसके अंदर क्वाड्रेटिक के अंदर बहुत कम टीचर डिस्कस कर रहे होते हैं. सो हमने सोचा कि एक बार डिस्कस कर लेते हैं. क्या है बेटा यहाँ पे, कंडीशन फॉर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है हमारे पास टू, यहाँ पर इनके इक्वल रूट होने हैं. कितने इक्वल रूट होने हैं, दो केस बनेंगे, दो ही तो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के. सो वी हैव अ टू रूट्स. तो द फर्स्ट केस व्हेन द ओनली वन यानी वन इक्वल रूट यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वहां पर क्या रिलेशन देखने को मिलेगा आपको, ये रिलेशन देखने को मिलेगा. जस्ट थिंक अबाउट द रिलेशन. कैसे सोच सकते हो आप, थोड़ा सा ऐसे सोचिएगा. अभी कभी कहोगे उसे ड्राइव करा देंगे अगर आपके पास आएगा तो. यहां पर x की वैल्यू चूंकि इनके एक रूट अल्फा होते हैं तो अल्फा स्क्वायर निकाल लेते हैं. मैं दिखाता हूं कैसे, एक मिनट. सो अगर ठीक है, इट्स ओके. पहले हम यहाँ पे एक बार सोल्यूशन करके देख लेते हैं, फाइंड करके, फिर हम कभी इसकी सोल्यूशंस की डिस्कशन भी कर लेंगे, प्रूफ का डिस्कशन भी नेक्स्ट कभी कर लेंगे. अभी हम रिवीजन क्लास में, तो हमारे पास टाइम्स थोड़े से कम बचते हैं. ओके, सो a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दिस, ये टू अगर इक्वेशंस है तो इसके वन इक्वल रूट्स होने का कंडीशन ये हो जाता है. कैसे इजीली आप सोच सकते हो, यहाँ आप देखिए जरा. a1 a2 b1 b2 c1 c2. आपको फर्स्ट क्या करना है, A1, अब यहां पर देखिए जरा आप, एक मिनट. अब ग्रीन वाले कनेक्शंस को चेक करिएगा. A1 B2 B1 A2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा. A1 B2 ये यहां ये वाला बनाया हमने, इससे इस वाले पेयर से हमने ये बनाया है. जरा देखिएगा फर्स्ट पार्ट A1 B2 B1 A2, ठीक है. अब सेकेंड पार्ट क्या बनाएंगे, B1 C2 C1 B2. सेकेंड पार्ट से हमने बनाया, जो ये उन्हें रेड वाला पार्ट देख लेते हैं एक बारी, या येलो वाला पार्ट ले लेते हैं. ठीक है, येलो वाले ये टू पार्ट से हमने ये वाला पार्ट बना लिया. और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो फाइनल, जो ये हमारे फाइनल वैल्यूज होंगे टू, कौन कौन से भाई, ये वाले दो वैल्यूज. ओके, A1 और C1 के साथ जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी कैसे, इधर दिखाता हूं. A1 A2 C1 C2 इनके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के स्क्वायर के इक्वल आएगा. चेक करिए यहाँ पे, ठीक है. तो अभी के लिए ऐसे कर लेंगे. बाकी इसकी प्रूविंग कैसे होती है, उसमें x इक्वल टू अल्फा, हम इसके एक सिंगल रूट को कंसीडर कर लेते हैं. यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अल्फा हो जाता है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और फिर अल्फा स्क्वायर और अल्फा को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह ट्रीट करके वहां पे हम अल्फा की वैल्यू निकाल रहे होते हैं. वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा. अगर आपने नहीं पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो भी प्रॉब्लम होगी आपको. सो अभी के लिए हमने सिंपल तरीके से समझ लिया कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. अच्छा, सेकंड केस डिस्कस करते हैं कि जब टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने कॉमन रूट हो, टू कॉमन रूट्स हो, तो क्या करना है. बहुत इजी केस है वो वाला, सेकंड वाला. जरा देखते एक बारी क्या होता है. इफ दीज टू हैव बोथ द रूट्स आर कॉमन, सो द कोफिशिएंट्स के जो रेशियो होंगे वो क्या होंगे, आपके सेम होंगे. ओके, ठीक है. तो इजी टॉपिक है, बन जाएंगे यहां से क्वेश्चन. अगर इनके रेशियोज सेम देखने को मिल जाए, B1 B2 C1 C2, ये आपको, सॉरी यहाँ पे C1 है, तो अगर ये रेशियोज सेम देखने को मिल जाए आपको, तो इसका मतलब है कि इनके दोनों रूट्स कॉमन है. सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं. एक क्वेश्चन है, ये आप लोग करिएगा सेम उसी फर्स्ट वाले रूट पे. अगर आप देखें तो जो फर्स्ट कॉमन रूट वाला क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा, बन जाएंगे आपसे क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो A1 की वैल्यू 1 है, B1 की वैल्यू -11, C1 की वैल्यू A है, और यहां पर क्या है, A2 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू -14, C2 की वैल्यू 2A है. हमें बोला गया है कि दीज टू क्वाड्रेटिक हैव अ कॉमन रूट, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ A. तो जो कंडीशन था यहां पे देखिएगा जरा, जो कंडीशन था यहां पर वन कॉमन रूट का, यहां पे आइएगा,
वैल्यू डायरेक्टली पुट करिएगा और आपको जो सॉल्यूशन है वो इजीली मिल जाएंगे। ओके वेट, एंड ये मैंने कुछ असाइनमेंट्स तैयार कर रखे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग इन्हें एक बारी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सो दैट आप इन्हें घर पे सॉल्व कर पाए। ये आपको हेल्प कर रहे होंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी और स्कोर की प्रिपरेशंस के लिए भी। तो इन्हें आप लोग एक बार कंक्लूड कर सकते हो। मैं साइड हो जाता हूँ, आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, द नेक्स्ट स्लाइड इज ओके, दिस इज ऑल्सो द 3 क्वेश्चंस जो हमारे लिए वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इन्हें भी आप बना लीजिएगा, ये भी आपको हेल्प कर रहे हो। ओके, तो ये असाइनमेंट्स थे आपके जो भी हमने लेक्चर डिस्कस किए उनके ऊपर, उनके बिहाफ पे। और अगर आ जाते हैं हम बात करते हैं एक बार को। ओके वेट, ओके सो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने स्कॉलरशिप एग्जाम्स भी दे रहे होते हैं। जो हमारा स्कोर एग्जाम है वो एक प्योर स्कॉलरशिप एग्जाम होता है जहां पे हम कैश रिवार्ड भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं बच्चों के लिए। सो एक ऐसा एग्जाम जो आप अगर एज ए स्टूडेंट 9, 10, 11, 12, 8 में भी बैठे हो तो आप स्कोर एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम लोग ये करा रहे होते हैं और इसमें कुछ कैश प्राइजेस है। 2.5 करोड़ तक के कैश रिवार्ड डायरेक्टली कैश बच्चों को दिए जाते हैं और 350 करोड़ तक की पैन इंडिया के अंदर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जा रही होती है हमें, आप लोगों को। एजुकेशनल नासा ट्रिप्स भी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमारे यहाँ से। जो बच्चे अच्छे साइंस के फील्ड में, साइंस ओलंपियाड फील्ड जो अच्छा कर रहे होते हैं उन्हें नासा ट्रिप्स वगैरह के लिए भी भेजा जाता है। एंड सम प्रीमियम गैजेट्स ऑल्सो। तो आप जानते होंगे यहाँ पे प्रीमियम गैजेट्स, जैसे कि हम एग्जाम वगैरह कराते हैं तो वहाँ पे ऑफर के थ्रू या जो भी जिनकी रैंक अच्छी आती है, स्टेट रैंक अच्छी आती है, नेशनल रैंक अच्छी आती है, उनके लिए ये सारी चीजें प्रोवाइड करा जा रही होती है। ओके, स्कोर एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम? फर्स्ट हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे तो एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा जहां पे आप अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कर रहे होते हैं। उसके बाद वहां पर वेरीफाई करने का और कंफर्म करके लास्ट सबमिट बटन वहां पे आ रहा होगा। उसके बाद पेमेंट मोड में आएंगे तो 150 रुपीज का पेमेंट आपको करना होता है और उस पेमेंट के बाद आप सीधे एलिजिबल हो जाते हो एग्जाम के लिए। उसकी एग्जाम की डेट भी हमारे पास पड़ी हुई है, अक्टूबर में है, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूं कौन सी डेट है हमारी एग्जाम की। ओके, 4 अक्टूबर एंड 1 नवंबर को हमारा एग्जाम हो रहा होगा स्कोर का। पैन इंडिया में हो रहा होगा, ऑल ओवर इंडिया के अंदर काफी बच्चे यहाँ पर इनरोल्ड हो रहे होते हैं, काफी बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं, लाखों में होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देख ले कि ठीक है, और कब तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो यहाँ पे, तो फॉर स्टूडेंट सीकिंग स्कॉलरशिप फॉर श्री चैतन्य कोचिंग एकेडमी एग्जाम इज शेड्यूल ऑन 11 अक्टूबर 2026। ओके, ठीक है। एंड फॉर स्टूडेंट सीकिंग स्कॉलरशिप फॉर श्री चैतन्य स्कूल्स एंड कॉलेज एग्जाम इज शेड्यूल्ड ऑन 4 अक्टूबर 2026 एंड 1 नवंबर 2026। तो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आई थिंक शायद ये अलग डेट पर रखा हुआ है और जो भी अदर इंस्टीट्यूट्स के बच्चे होंगे उनके लिए अदर डेट पे रखा हुआ। तो बेसिकली हमारे पास 3 डेट्स है जहां पे आप स्कोर एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। फर्स्ट 4 अक्टूबर एंड द सेकंड इज 1 नवंबर 2026 एंड द 11 अक्टूबर 2026। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, वहां से आपको प्रॉपर डिटेल और भी जो भी डिटेल आप चाह रहे होंगे वो भी आपको मिल जाएगा। वहां पर कुछ नंबर्स भी दिए गए होते हैं कोऑर्डिनेटर्स के और टीम के, उनसे भी आप कांटेक्ट करके ब्रीफ जो है अपने नॉलेज ले सकते हो। ओके, ठीक है। तो आप ऐसे इस वेबसाइट के थ्रू आप स्कोर के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो, www.srichaitanyascore.com। इसको करके सर्च करेंगे तो प्रॉपर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पास पहुंच जाएंगे और वहां से आप प्रोसीड कर सकते हो आगे की तरफ। थैंक यू सो मच। सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।